Hello everyone, welcome to Apti Place Academy for Civil Services. This is a video and daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from the Hindu Indian Express. So we'll discuss the most important news of the day, and additionally I'll be supplementing the content with some relevant information that can help you in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. Today is 19th of March. The first topic is Russia hosts Afghan peace meet. Second is US Senator concern over India. A lot of concern has been raised regarding the functioning and the democracy in India. Third is India to support Sri Lanka at UNHRC. The second last topic, Rajya Sabha passes bill to raise the FDI limit in the insurance sector. We already had a discussion about the FDI limits in the insurance sector in our previous edition as well. And the last is lateral entry and administrative reform, right? So these are some of the important news article and editorial from today's newspaper. And at the end of this session, I'll be also discussing some MCQs question that is going to help you in the upcoming prelims examination. So we at Apti Plus by our IS Gyan initiative has launched prelims mock test for you. So this is a must awaited mock test series that you'll be waiting for. So this is a comprehensive mock test that will give you an all India ranking. The questions are according to the strictly UPSC pattern. This is a 360 UPSC experiences in the same environment that you're experiencing in the examination, and also a detailed solution that is going to be provided by the subject experts. And in the in-depth analysis, the discussion is definitely going to help you in the upcoming prelims examination. And we have some offer for the top 10 scorer. Like the top 10 scorer is going to have free classes for the prelims express and 5 full length tests for the prelims, right? So this is what there, and you can have the test on 28th and 11th, right? So for more details, you can refer to the description section of this video where I have provided the link. You can register from there itself. Now coming to the first news, that is Russia hosts Afghan peace meet. So Russia is very much acting as an bridge to negotiate with the Taliban and Afghanistan. So this is important for your general studies paper 2, bilateral regional grouping and agreements involving India and India's interests. So recently Russia has hosted a peace conference between the Afghanistan and Taliban, और ये बहुत ही important initiative है जहाँ पे जो पूरी conference की aim है is to bring the government's representative from the Afghanistan and Taliban, जिसके बहुत सारे adverse consequences रहे हैं पिछले कुछ सालों में. So एक international observation के तौर पे this would be a jump start to stall the peace process, because the peace process has been stalled because तालिबान want their own governance और वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान उनके साथ पावर शेयरिंग करे. बट अफगानिस्तान का कहना है कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो और इलेक्शन के साथ जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके साथ किया जाए. Now withdrawal of US and NATO troops, it has been already being announced by the United States कि वो अपने phased तरीके से 3-phased तरीके से basically they would be moving away from the Taliban region. May 1st is the deadline to withdraw all the forces of United States and NATO. So आप NATO के बारे में भी पढ़ लें. नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में भी यूपीएससी में आपसे प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. So the date has been fixed under an year-old engagement between the US and Taliban, right? So this is why Russia is acting as a mediator. Now moving to the other important point, how Russia can be acting as a mediator and how this is going to benefit them. So Russia attempt as a mediator comes at the top when the Doha round was also in place. तो वहाँ पे अफगानिस्तान के साथ तालिबान में खास करके जो स्टैंड स्टिल बनी हुई थी, वेविंग द इंसर्जेंसी दैट हैज़ बिन स्टॉल्ड. नाउ जब यूएस और अफगानिस्तान ने ये ऑलरेडी कहा है कि वो जो सीज फायर की जो वॉल्यूशन है तालिबान रीजन में उसको नेगोशिएट करेंगे विद द पीस टॉक. नाउ द अफगान गवर्नमेंट इज taking a proactive role to give a resolution to that issue. Now Russia, who fought for 10 years in the Afghan war, ये 1989 की बात है जब उस टाइम पे रशिया ने अफगानिस्तान वॉर में अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंस दिखाई थी. एंड दिस इज समथिंग नाउ प्रेजेंटली इट इज कंसिडर्ड एज द डेमोक्रेटिक or diplomatic comeback between the mediator in the Afghanistan, right? So Russia is trying to play a major role in mediating issue that is between the Afghanistan and their own people. Basically आप कह सकते हैं तालिबान भी it's mostly part of the Afghanistan itself. So Russia is trying to have a proactive role and they're trying to mediate it with all best possible peace talks.
Now, what is the way forward, right? आप अगर आंसर लिख रहे हैं, if you're and even in the interview as well, in the personality test, अगर बात करूँ personality test में भी, so this type of question is basically asked to know your opinion. So you have to be there with the opinion. तो आपको बताना होगा कि जो पीस है अफगानिस्तान में वो बहुत ही क्रूशियल है. ऑलमोस्ट जितने भी कंट्री उस रीजन में वो सब चाहते हैं कि पीस स्टेबल हो, एंड इंडिया इज अमंग वन देम. इंडिया ऑल्सो वांट कि अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो उस चीज़ का फ़ायदा वापस पाकिस्तान उठा सकता है, बीइंग आवर इमीडिएट नेबर. Now, therefore, India must give a diplomatic push to the coalition of the regional power, and it should also ensure कि जो peace है अफगानिस्तान में after US exit should maintain and sustain. Now, in pursuit, India should engage with the regional power like Iran and Russia. तो इंडिया के लिए बेस्ट सॉल्यूशन आउट ये है कि जो ईरान है, रशिया है, उनके साथ वो कोलैबोरेट करे और अफगानिस्तान और तालिबान की जो रीजन है वहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी को बनाने में बहुत हद तक ये रीजन मदद कर सकते हैं, राइट. नाउ कमिंग टू द अदर न्यूज़, दैट इज यूएस सेनेटर कंसर्न ओवर इंडिया. सो a remarks has been given about the functioning of the government of India, and it is not very positive news. उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे क्रिटिसाइज किया है गवर्नमेंट को. लेट्स सी व्हाट आर द डिटेल्स कमिंग फ्रॉम दिस न्यूज़. इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2, effects of policies and politics of the development and developing countries in India's interest. तो यूएस के जो सेनेटर हैं, दे हैव सेड लाइक दे आर टेकिंग द नोट ऑफ द इंडिया सेइंग ऑन द इंडियन गवर्नमेंट that is moving away from the democratic values. So this is one of the important point. उनका कहना है कि इंडिया अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो सिटीजन को दिए जाते हैं, उससे काफ़ी हद तक दूर हट रही है, दूर हटती दिख रही है, राइट. द एक्सपीरियंस इज सोर्स एंड समवेयर इट इज़ करेक्टली ऑल्सो. विल सी किस पॉइंट पे ये बातें कही गई है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की वाली बातें जो हैं. Now, it raised concerns over the democracy status in India because there are a lot of the cases that has been arisen, and the present government has been lot criticized regarding maintaining the efficacy of the democracy. Now, India purchased around S-400 की जो रशियन मिसाइल थी उसको भी इंडिया ने परचेज किया. तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट कंसर्न्स थे, एक तो डेमोक्रेटिक राइट, उसके अलावा प्रोटेस्ट को भी लेकर के, एंड जो काटसा की जो एग्रीमेंट है रशिया के साथ जो सैंक्शन की गई है इंडिया को. विल डिस्कस एवरीथिंग in the later part of the video. Now, other important concerns जो raise किए गए हैं US senator की तरफ से, first is like crackdown on the journalist because many journalists have been the charges of seditions, right? Seditions charges बहुत ही use किए गए हैं उन लोगों पे, and it's not part of the healthy democracy where democratic rights are provided, freedom to speech and expression is there. उस टाइम पे ये चीज़ें काफ़ी नुकसानदायक है. Now, government insufficiency in handling the farm protest because the recent protest which is going in the Delhi NCR region, जितने भी पंजाब से protesters हैं, ईस्टर्न यूपी से सारे लोग हैं, they are protesting against the MSP and the 3 farms bill, right? So government has not handled it well, and the Citizenship Amendment Act CAA, which was mostly in the news pre-pandemic, now it has been postponed. गवर्नमेंट ने इसको आगे पोस्टपोन भी कर दिया है. लेट्स सी व्हेन दिस इज कमिंग. बट ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और कंसर्न है जो कि यूएस सेनेटर्स ने रेज किया अगेंस्ट इंडिया. Now, if we talk about the काटसा सैंक्शन, काटसा के बारे में आप देख लें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एज वेल. मेंस में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है. सो खास करके बात करें S-400 की, जो कि इंडिया ने परचेज की थी रशिया से. दिस इज अंडर $5.5 बिलियन. तो उसको देखते हुए यूएस ने इंडिया पे काटसा का सैंक्शंस लगाया है, और सैंक्शंस इज लाइक वेरी पार्ट ऑफ दैट इज एडवर्सली इम्पैक्टिंग इंडिया. तो ये जो काटसा लगाई गई थी, इससे पहले जो प्रेसिडेंटशिप थी डोनाल्ड ट्रंप की, ही सेड दैट द सैंक्शन इज अ वेवर एंड नॉट ऑटोमेटिक टू डिसाइड ऑन केस बाय केस बेसिस. नाउ चाइना ने भी सैंक्शन किया रशिया को फॉर देयर इक्विपमेंट विच वी आर सेलिंग टू इंडिया. So because Russia and India is one of the important partners, right? तो रशिया हमेशा डिफेंस के इक्विपमेंट्स में इंडिया की साथ ही उसने दिया है. तो रशिया को सैंक्शन कर दिया चाइना ने, और इंडिया को सैंक्शन कर दिया यूएसए ने, राइट. नाउ इफ इंडिया चूजेस टू गो फॉरवर्ड इन परचेज ऑफ द S-400, इट विल क्लियरली कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट. देयरफॉर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो ट्रांजिशंस की गई है रशिया डिफेंस सेक्टर में, दैट इज अंडर सेक्शन 231 ऑफ द काटसा. तो काटसा से बहुत ही बेसिक सवाल आपसे प्रीलिम्स में एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. नाउ द अदर न्यूज़, इंडिया टू सपोर्ट श्रीलंका एट UNHRC. सो दिस कैन बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन. एंड दिस इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
और यूएनएचआरसी के जो पॉइंट्स है वो आपके प्रीलिम्स में भी काफ़ी रेलिवेंट होंगे. Now, India has assured Sri Lanka of its support at the UN Human Rights Commission. जो UN की ह्यूमन राइट काउंसिल है उसमें इंडिया ने कहा है कि वो सपोर्ट करेंगे श्रीलंका को, उनके लिए वोट करेंगे. ना प्रेजेंटली अभी कोई ऑफिशियल डिसीजन ली गई है, ना ही कन्वेट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, बट द श्रीलंका गवर्नमेंट हु इज़ एट द कोर सपोर्ट, वो उनका कहना है कि जो वहाँ पे सिंगला बुद्धिस्ट नेशनल है वो कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया है ह्यूमन राइट के लेटेस्ट रिपोर्ट को भी, राइट. सो दे आर ट्राइंग टू सेव देमसेल्फ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. और श्रीलंका हैज़ ऑल्सो बीन रीचिंग आउट द मेंबर ऑफ कंट्रीज, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनसे भी वो खास करके टॉक्स पे है, वार्तालाप पे है. दे आर ट्राइंग टू नेगोशिएट लाइक कि जो श्रीलंका है पोस्ट वॉर जो रियलिटीज़ है वो यूएन रिजोल्यूशन में नहीं जाए, क्योंकि एक बार आप इसमें सैंक्शंस लग जाते हैं यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में जब प्रॉब्लम्स आती है तो उस कंट्री की जो ओवरऑल इंप्रेशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. Now eyes on India vote because being the immediate neighbor श्रीलंका won't, कि खास करके इंडिया किसको वोट करेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी. और राजापक्षे गवर्नमेंट की बात करें जो प्रेजेंट में है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया के साथ जो श्रीलंका ने किया खास करके जो स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इंडिया को बिना बताए कैंसिल कर दी गई थी प्रोजेक्ट्स फॉर इंडिया बिकॉज चाइना वॉज डोमिनेटिंग दैट रीजन, राइट. सो इंडिया हैज़ ऑल्सो रेज अ कंसर्न डिस्पाइट द फैक्ट कि एग्रीमेंट इंडिया के साथ हुई और वापस से श्रीलंका ने इसको कैंसिल कर दिया बिकॉज ऑफ चाइना. सो दीज आर द कंसर्न, बट एट द रिजॉर्ट टाइम जहाँ पे प्रॉब्लम आई है तो इंडिया अभी भी अपने प्रोएक्टिवली रोल के साथ खड़ा हुआ है. Now, this is the official intervention made by India so far Sri Lanka ongoing 46th session of the Council in Geneva, जहाँ पे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्होंने कहा है कि जो 2 पिलर्स हैं दोनों कंट्री के बीच में, दैट इज यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड अबाइडिंग कमिटमेंट टू द तमिल एस्पिरेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. जो तमिल एस्पिरेशंस की बात की गई है उसमें इक्वालिटी, जस्टिस, पीस एंड डिग्निटी, दीज 3 थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो इंडिया का कहना है कि दे वुड बी सपोर्टिंग श्रीलंका एट एनी कॉस्ट, बट श्रीलंका ने जिस तरह से बिहेव किया इंडिया के साथ बहुत सारी खास करके जो ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उसमें, और या फिर जो अगर पोर्ट की बात करें पोर्ट में भी उन्होंने बिना बताया उसको कैंसिल कर दिया था, राइट. सो दीज आर द थिंग दैट इंडिया हैज़ ऑलरेडी केप्ट इन माइंड. Now, the other news that is Rajya Sabha passes bill to raise the FDI limit in the insurance sector. Important for your general studies paper 2. और अगर बात करें जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए तो जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंक्लूसिव ग्रोथ में भी आप इसको देख सकते हैं. Now, the Rajya Sabha basically on the Wednesday they have passed the Insurance Amendment Bill 2021, और जो bill है that aims to increase the maximum foreign investment that was allowed to 74%. इनिशियली पहले 49% तक कैपिंग की गई थी एफडीआई की खास करके इंश्योरेंस सेक्टर में. नाउ इट हैज़ बीन राइज to 74%, has been risen to 74%, and this is something which is very important. This will make market more competitive. तो क्या क्या एडवांटेजेस होंगे जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, दे वुड इम्प्रूव द कैपिटल अवेबिलिटी. जब एफडीआई आएगी तो कैपिटल अवेबिलिटी बढ़ेगी तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा. And FDI limit hike will develop in insurance industry big channel generating the durable fund for creating the long time assets. And greater foreign investment will allow insurance companies to introduce the broader range of affordable prices. So जब market competitive होती है तो जो खास करके जो consumer हैं, जो target group है, उनको benefit मिलता है because they get the prices at very affordability, right? तो अफोर्डेबल स्कीम्स मिल सकते हैं उनको, और जो इंक्रीज होगी पेनिट्रेशंस की खास करके हेल्थ सेक्टर में या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में, जो कि प्रेजेंट अभी 3.71% पे ही है, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग 3.71% टू द जीडीपी. नाउ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन कंट्री दिस इज ओनली जस्ट 3.71%. हायर इन्वेस्टमेंट से मार्केट पेनिट्रेशन भी बढ़ेगी जो कि अभी काफ़ी अनरिजर्व्ड है. एंड इट वाज आल्सो टू ब्रिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस अमॉन्ग द पुअर पीपल, और खास करके जो अफोर्डेबिलिटी है, जो कम्पिटिटिवनेस है, वो ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि ये सब लोगों के आउटरीच में हो सके. Now the other news, that is lateral entry and administrative reform. So this has been reported in the Indian Express. This is written by Dheeraj Nair, and he writes brilliantly, right? He's a brilliant writer, and he talks about how like lateral entry and the administrative reform is going to impact the overall system. और खास करके जो ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई गई है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पैक्ट होगी, उसकी रियलिटी भी इन्होंने एज के साथ बताया है. सो विल सी एवरीथिंग वन बाय वन. So it is important for your general studies paper 2, important aspects of governance, transparency, accountability, e-governance and everything.
सो रिसेंटली नहीं बोलेंगे, बहुत पहले भी यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए थे जहाँ पे लैटरल एंट्री को अलाउ किया गया था इन द जॉइंट सेक्रेटरी लेवल। और जो लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रही है इंडिया में, बिकॉज ARC 2 की भी अब रिकमेंडेशंस देखोगे तो उसने भी कहा था कि बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के करने की बातें कही थी। और रिसेंटली जिस तरह से पार्लियामेंट में अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जितने भी बेसिकली ही कंप्लेंट की जो IAS काडर की आउटरीच है, एलीट आईएएस काडर, वो हर जगह पे हो गई है। तो क्या is it necessary that everything can be regulated only by the IAS officers, or we need some other people, some expert, some domain expert that is coming? अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे डोमेन एक्सपर्ट में जो बोलना चाह रहा हूँ, तो अगर RBI की बात करें, राइट, अभी के जो RBI के गवर्नर हैं शशिकांत दास, ही इज़ एन IAS ऑफिसर, राइट, एंड इफ़ यू नो ही इज़ ग्रेजुएट फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज इन हिस्ट्री। तो एक हिस्ट्री के ग्रेजुएट इज कंप्लीटली हैंडलिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच नीड्स अ हाई स्किल। ऐसा बात नहीं उसकी कि मैं क्रेडिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेटली ही इज कैपेबल एनफ, मोर देन कैपेबल एनफ, दैट इज द रीजन ही इज हैंडलिंग, राइट। बट कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, जैसे रघुराम राजन है, बिमल जलान है, सो दीज आर द बाहर के ये लोग हैं, राइट। तो ये लोगों ने जब ये लोग का एंट्री हुई, या आप अभी के जो प्रेजेंट इकोनॉमिक एडवाइजर उनकी भी ले ली, दे आर नॉट IAS, राइट, दे आर द डोमेन एक्सपर्ट, वो इकोनॉमिस्ट हैं, बाहर पढ़ाते हैं। सो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे लिमिटेशंस होनी चाहिए, बिकॉज एक IAS ऑफिसर की जो एक्सपीरियंस वो कैरी करता है अपने साथ, वो दूसरे लोग कभी भी कैरी नहीं कर सकते हैं, राइट। दिस इज प्रीटी ट्रू। Now, unsurprising अगर बात करें, the key area of such reform is enabling the lateral entry, जहाँ पे permanent system of administrator को भी रखा जा सकता है। Now, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं lateral entry में, अगर प्रेजेंट की अगर बात करें, तो अभी कुछ ऐसे 8 प्रोफेशनल्स थे जिनको जॉइंट सेक्रेटरी के पोजीशंस पे रिक्रूट की गई है, एंड सम ऑफ द पोजीशन ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी ऑन द डायरेक्टर लेवल हैज ऑलवेज बीन advertised also. तो बहुत सारे advertisement, UPSC is a nodal body that take care of everything, so the transparency is there and quality is always ensured. Now, logic of lateral entry की बात करें, क्योंकि ये कहा गया कि जो lateral entry के सिस्टम है, पूरे जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग है उसको पूरा शेक करेगी, बट जो धीरज है उनके मुताबिक इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, लेट्स सी। He says an IAS officer get promoted to the secretary level after 17 years. अगर आप आज से IAS बनते हो 2022 में, so you need 17 years to become a secretary, right? And IAS has a permanent system of strict seniority bound that is there, right? आप उसमें कुछ चीज़ें, कोई दोबारा आपको एग्जाम नहीं देना होता, आपके सिर्फ सीनियरिटी बेसिस पे यू गेट प्रमोटेड, राइट। और भी दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम या दूसरे डिपार्टमेंट में आप एग्जाम दे करके आगे बढ़ सकते हैं, बट IAS बनने के बाद यू डोंट हैव टू गिव एनी एग्जामिनेशन, दैट इज कम्प्लीटली टाइम बाउंड एंड सीनियरिटी बेस्ड। सो दिस मेक्स द एवरेज एज ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी अराउंड 45। अगर आप 17 ईयर कैलकुलेट करोगे, एवरेज लेते हैं तो 45 पे आती है, राइट। तो 45 की एज पे अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को आप लाते हो जो कि उस टाइम पे अपने कंपनी में CXO होगा, दिस इज चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर, तो वो बंदा उस टाइम पे कभी भी अपनी कंपनी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उसकी कंपनी के लिए काफ़ी इनरिचिंग एक्सपीरियंस होगी। वो इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि लैटरल एंट्री में टाइम डिसाइडेड है, या तो आप 5 ईयर के लिए रहोगे या तो आप 10 ईयर के लिए रहोगे, राइट। उसके बाद उसको अपने पेरेंट अकेडमी ज्वाइन करनी है, या पेरेंट जो जिस कंपनी से हुआ है वहाँ उसे ज्वाइन करनी है। तो CSO की एक्सपीरियंस कोई भी नहीं छोड़ता, और उस टाइम पे ये लोग CSO होते हैं, और इस टाइम पे गवर्नमेंट जब जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशन को लाती है तो वहाँ पे बहुत हद तक पॉसिबिलिटी ये है कि जो IAS के काडर के लोग हैं वही लोग ही रहेंगे, ना कि बाहर के ज़्यादा लोग आएंगे। Now the logic extend to other rank as well, जहाँ पे IAS ऑफिसर की जो सेक्रेटरीज की अगर बात की जाए, they mostly become secretaries after 30 to 33 years of services, as many as 55, right? तो जो बेस्ट टैलेंट है दैट इज कमिंग ओनली टू ज्वाइन द सर्विसेज और 50 और लेस। सो इफ यू लुक एट द लैटरल एंट्री, जो अर्लियर जनरेशंस हैं अमंग द इकोनॉमिस्ट, दे वर मच ग्रेटर हैव द फ्लेक्सिबिलिटीज। तो कुछ एज कंपैरिजन है कि गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि हम पूरे नहीं, बट कुछ परसेंटेज में सीट्स को रिजर्व करेंगे ताकि डोमेन एक्सपर्ट को भी इंक्लूड किया जा सके। और ये प्रैक्टिसेस इंडिया में ही नहीं, सिंगापुर, जापान, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया, दे आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग दिस टाइप ऑफ lateral entry into the country.
Now, way forward की अगर बात करें, जो lateral entrants हैं that need to able have a stamp and authority on their decision making. देखो, जो एक teaching experience एक civil servant के पास होती है, because he has been serving from district level and past 17 years, so he had a lot of enriching experiences that cannot be competed by the expert. But आप फंक्शन को देखो, जिस चीज पे आपको काम करनी है, जिस डिपार्टमेंट को चलानी है, क्या वहां पे एक्सपर्ट चाहिए? सो दैट कैन बी देयर, कुछ सर्टेन परसेंटेज को रिजर्व रख सकते हैं. नाउ पास्ट जो एविडेंस है वो शो करती है कि जो लैटरल एंट्रेंट्स हैं, दे हैव मेड अ बिगेस्ट इम्पैक्ट, राइट, सर्विंग द सिस्टम एंड लेंथ एंड टाइम. तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई. और लैटरल एंट्री में जो कुछ चीज़ें ध्यान देने की है, दैट इज द जॉब असाइनमेंट, नंबर ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग टू मेक फोर्स एंड द पॉजिटिव चेंजेस. सो रिजल्ट ओरिएंटेड अगर काम की जाए तो इस तरह के जो लैटरल एंट्रेंट हैं वो बहुत हद तक हमारे सिस्टम को इम्प्रूव कर सकती है. सो मेक श्योर आपके पास ये क्वेश्चन जनरल स्टडीज पेपर 4 में भी आएंगे, एंड इवन इन द मेंस पेपर दे कैन आस्क यू, और इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. तो आप इसके सारे चीज़ों के हॉलिस्टिकली कवर कर लें. नाउ कमिंग टू द MCQs क्वेश्चन ऑफ द डे. The first question is from the new START nuclear treaty recently seen in the treaty is between which one of the following country. आपको बताना है इंडिया, जापान, इंडिया एंड रशिया, US एंड रशिया, और जापान एंड रशिया. So you have to tell me which among the following is the correct option. Now the second is the National Center for Sustainable Coastal Management is located in which among the following city? New Delhi, Chennai, Gurugram, or Hyderabad. So what you have to do, you have to just write your answer in the comment section down below. पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे 1 लिख करके अपने आंसर ABCD, या 2 लिख करके ABCD, जो भी आपको करेक्ट आंसर है वो ज़रूर चेक कर लें, राइट. एंड डू चेक द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, जहाँ पे मैंने आपको मॉक टेस्ट सीरीज के लिए डेडिकेटेड लिंक दिए हुए हैं. एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब FT Plus Academy for Civil Service on YouTube. And if you like this video, do not forget to give thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.